Dr. Shabana is here, and I would like to introduce her. Welcome, first of all, good evening, and formally welcome to everybody who is here in online today. I welcome everybody, and I'm sure that this will be a very useful, very interesting session that we are joining. And Dr. Shabana is a highly trained and professional counseling psychologist who is an expert in diagnostic assessment and all different therapies. She has more than 20 years of experience in the field of counseling and psychology. She has been working with relationship and family counseling, which is very relevant to MS people. जैसे आप लोग जानते हैं कि MS जिसके घर में होता है, कुछ प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स में थोड़ा बहुत आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, किसी भी बीमारी में, किसी भी तकलीफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं. So she can help you to overcome and how to go about it. But she also specializes in child and adolescents counseling and psychoeducation. She has gained expertise in inclusive schools and interaction with the children with special needs. She works very closely with children with special needs as well. And she has trained many educators जो children with special needs के साथ काम करते हैं, उन teachers को भी ये train करती हैं. She is also certified in different acts like CSA, which is child abuse, personal safety, POSCO, as well as POSH, which is harassment at the workplace. And she has done training sessions in all of these. Because of her contribution in this field, she has been awarded an honorary doctorate and an achievement award by World Human Rights Protection Commission, and she is a lifetime member of that commission. Dr. Shabana is also a founder and CEO of a clinic, mental health clinic called Empathy, and also a founder member of another NGO called Dhanak, which works on humanitarian issues. At a personal level, she counsels children, minors, and adults who come from underprivileged background. And she has actually, I have to say, she says in her bio that she has made several media appearances and is regular on TV, newspapers, and radio. I just want to add here कि मैं इनसे मिली कैसे. मैं एक्चुअली गाड़ी चला रही थी और AIR का प्रोग्राम वो आ रहा था, रेनबो प्रोग्राम, और उसमें मैंने इनको सुना. मुझे नहीं मालूम था ये कौन है. वो जैसे ट्यून इन हुआ, मैंने इनको सुना तो मुझे कुछ बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से इन्होंने बड़े प्रैक्टिकल से 2-3 सजेशंस दिए. मैंने हार्डली इनको 5-7 मिनट सुना और फिर मैं इनको ढूंढने लगी. Luckily, the compere announced her name, तो मैंने जल्दी से उसका एक mental note बनाया, and that is how I have reached her. So she is popular on media as well. And along with whatever she does in her counseling, she is also a permanent employee with DAV Public School in Shrestha Vihar in Delhi. So that is ये बहुत ही संक्षिप्त में मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ही small bio है, but I'm sure that you, as we go along, you will hear more from her. Before we hear Dr. Shabana, I would like to ask Dr. Shabana, I may also take this opportunity to introduce you to some of our members from our Multiple Sclerosis Society of Delhi. First, I would like to introduce Bipasha Gupta. She is our honorary chairperson. And Bipasha, just kindly raise your hand. And our other member is Group Captain Malakar, who is, he's raising his hand too. He is currently away from Delhi and is in Goa, but he is very actively involved in all our activities. We also have with us today Amita Gupta. She is, Amita, kindly raise your hand. Amita is also a member of our committee. And we have Shalini Monga. Shalini, hi. Shalini is a person with MS, very active, very helpful, and does some wonderful work for us. And of course, we have Pooja, who is, I think, having some issues with her
connection today. So you can see her. Hi, ma'am. Yeah, okay. That's her in a yellow kurta with a red cap. And Pooja is not only our office manager, but a very, very active person. So these are some of the members who are present here today from our executive committee. And we would I would like to ask Bipasha Gupta ji to just introduce the program, because the question of mental health is a very key issue for all of us. And she will just like to talk to everybody about it. And then we'll go over to you. Thank you. Yeah, thank you. We've been thinking of taking up this topic for some time, and see, a lot of people come to us saying ki we need job and we are unable to go out. And see, job is not so easy, and it becomes a little impossible for some of our MS members. But that does not mean that the person cannot remain occupied. That is what we want to tell you. See, remaining occupied is very, very important for not only MS person, for even us. If we stay empty, we will just start feeling, acha yahan dard ho raha, wahan headache ho raha, wahan ye ho raha. The moment you get occupied with anything in life, anything, it be cooking, talking to your friends, or painting, or anything, flower arrangement, or trying out a recipe, anything occupies your mind. The more, if your mind is occupied, you are occupied, you will be much better. That is what we want to say. And of course, Dr. Shabana will be saying lots about it. Remaining occupied is not difficult. That is what she's going to say, how you remain occupied and why you should remain occupied. I'm glad so many of you are here today to listen to this, and those who are not here, you can always tell others what you heard and how you should be occupying all that. Okay, Dr. Shabana, over to you. You'll have to unmute yourself. Dr. Shabana, unmute yourself. Yeah. Correct. Thank you, Meenakshi ma'am. Thank you, Bipasha ma'am. Meenakshi ma'am has spoken really too much for me. And I already feel कि मैं यहाँ बहुत कुछ खुद भी सीखने वाली हूँ, because a lot of experienced people here are there. So to start with, I'll talk about a little about MS. Though you guys, everybody, Meenakshi ma'am, what language should I use? In English? We'll speak in English. I think Okay. that is best. I'm sorry. I have just noticed that Millie ma'am is also here, our member. I'm so sorry, for the Millie. delay. I missed seeing you on my screen, so I wasn't sure that you had joined. Just raise your hand, sitting there wonderfully in that green background. That is Mridula Murgai. She is also one of our very senior members. She's joined us, and my apologies that I didn't see you on the screen, so I was not aware that you had joined. I'm also here. Yeah, I know. Yeah, Rohit I'm not Yadav. talking about the executive committee, Rohit Rohit, is afterwards. Yes, I'm thank so you. sorry. I know. I'm so happy to see you there too. Yes. Yeah, please carry on. Carry on. So Yeah, so lovely we'll to speak see in English. everybody. If you can mix it up. You Okay. can mix it up. So very lovely to see you all here. And I guess if I start speaking about MS, I'll be the one with the least information about it. So I will not get into the technical details of MS. We all know what kind of disability it is, what kind of disorder it is. It starts with a scratch and then keeps growing. When when hampers with our neurons, when it hampers with our brain, it affects us overall. सिर्फ जैसे नॉर्मल बीमारियां होती हैं, नॉर्मल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें मे बी वन पार्ट और मे बी वन हार्मोन और मे बी वन स्किल और मे बी मतलब कोई एक चीज हैम्पर होती है. बट देर आर फ्यू डिसऑर्डर्स, नॉट ओनली एमएस बट देर आर फ्यू डिसऑर्डर्स जिसमें इट अफेक्ट्स अस ओवरऑल. सो एमएस इज वन ऑफ देम. अब इसका इफेक्ट कैसे भी आ सकता है. इट कैन बी start from your eyes, it can go on with other parts of your body, because when brain is involved, where it will react we also don't know. So each case is different, so each case should be dealt differently. Now here basically the session is not about what is MS actually. It is about how to
when we have MS, how to stay motivated, how to stay, occupied, what to do so that we are able to deal with it. See, first of all, to deal anything, there's a रामबाण तरीका. हम हिंदी में बोलते हैं ना कि this is a रामबाण तरीका for this thumb rule. So for any kind of problem, there are two things which you need to start with. किसी भी problem को strategize करने के लिए first thing is start. Acknowledge the problem, accept the problem, and then make a start. So overall, the gist of the whole session is going to be this, कि how we accept it, है ना. एक तरीका होता है कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने का, यार मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों हुआ है, why it is with me, what have I done wrong. If I go into this kind of thought pattern, of course I'll go into negative. The answers would be negative, right? Because the question we have posed is requesting negative answers. So we don't have to get into it. Why me? Right? It can be anybody. It can be anybody. Nobody selects. Disorders never select people कि इसको हो जाते हैं, इसको नहीं होते हैं. और दूसरी चीज, हमें कंपेयर नहीं करना है कभी भी किसी को भी. Me comparing with anybody who does not has MS, me comparing with somebody who has but is doing better, me comparing with somebody who had 5 years earlier to me but still not deteriorating that much. तो comparison नहीं करना है. मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, how can I accept that and move with that, उसको strategize करना है, उसको plan करना है, right? कुछ भी हो जाए. अब कहने को तो छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं. I'll not compare any two disorders, but कोई भी हमें लगता है कि जो हमें हो जाता है वो सबसे बड़ी बीमारी है ना. सबसे ज्यादा वो हमें साइकोसोमैटिकली हैम्पर करने लगता है, और जब वो साइकोलॉजिकली हैम्पर करता है, इफेक्ट करता है, तो फिर वो आपकी फिजिकल हेल्थ भी और डाउन ले जाता है. इट बिकम्स अ विशियस साइकिल, है ना. हम फिजिकली डाउन हो रहे हैं, हमारा साइकोलॉजिकली हम थोड़ा एंजाइटी में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इट डिटेरियोरेट्स आवर फिजिकल कंडीशन, वो और हमारा साइकोलॉजिकल मूड डाउन कर देता है. तो इट goes on and on and on and on. तो इस साइकिल को तोड़ना है. We don't have to get into this. Lakshmi, I realize कि we have parents also here, and yes, we have some caregivers as well as some people with MS. Right. So it is my request with both the people कि अगर देखिए जो केयर गिवर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होती है चीज़ें, है ना. उनके मेंटल हेल्थ पे भी उसका बहुत असर पड़ता है. अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है तो ये नहीं कह सकते कि वो अकेले जिसको प्रॉब्लम है वो परेशान हो रहा है. उसके साथ उसकी मदर, उसके फादर, उसके भाई बहन, उसकी वाइफ, बच्चे, जो भी हैं आसपास, वो सब इफेक्ट होते हैं. और इस बात का ख्याल सिर्फ उनको नहीं रखना है केयर गिवर्स को, इस बात का ख्याल जिनको एमएस है उनको भी रखना है कि हाँ, ये नहीं कि हम विक्टिम हो गए हैं, अब हम भैया हम तो हम एमएस हैं, हमारा तो मूड फ्लक्चुएशन हो ही सकता है. नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे. हमें डट के खड़े रहना है. जितना हम स्माइल करते रहेंगे उतना उनके लिए हिम्मत रहेगी ताकि वो हमारे साथ खड़े रहे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड विद ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड छोटी सी आजकल हम बात करते हैं हर जगह, जहां भी मेंटल हेल्थ की बात होती है, किसी भी डिसऑर्डर की बात होती है, आजकल तो पॉलिटिक्स की बात हो रही है या सोसाइटी में इंक्लूजन की बात हो रही है, हम इंक्लूसिवनेस की बहुत बात करते हैं. तो वो यहाँ भी होना चाहिए. सिर्फ कुछ स्पेशल नीड्स हैं जो हमारी बढ़ गई हैं, ठीक है, हमें एक इशू है और हमें कहीं ना कहीं पता है कि हम थोड़ा थोड़ा ये बढ़ेगा अगर हमने केयर नहीं की तो, है ना. ये नॉन ट्रीटेबल है, नॉन क्योरेबल है, सॉरी, वो तो हमें पता है, वो हमने समझ लिया, रट लिया, और हम परेशान भी हो गए कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकता कभी. पर ऐसी तो आधी से ज्यादा बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो सकती कभी. हमारा तो नॉर्मल सा डायबिटीज, जिसको हम अब बीमारी ही नहीं मानते, वो भी नॉन क्योरेबल है. और देखा जाए तो 100 बीमारियां साथ लेकर आता है. लाइफस्टाइल मुश्किल कर देता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, है ना. कोई डिसेबिलिटी इंड्यूस नहीं करता वो एकदम आते ही, पर लेटर स्टेज में वो भी कर देता है. आई साइट चली जा रही है लोगों की, लोगों का क्या कहते हैं बोन्स में प्रॉब्लम आ जा रही है, लोगों के हाथ पैरों में प्रॉब्लम आ जा रही है, राइट. तो वी विल नॉट कंपेयर आवर डिसऑर्डर विद एनीबॉडी. वी विल लुक फॉर स्ट्रेंथ्स वी हैव एंड स्टार्ट. हमारे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है,
और हम सब में बहुत स्ट्रेंथ होती है, जितनी हम जानते भी नहीं है उससे भी ज्यादा, मोर देन व्हाट वी अज्यूम वी कैन डू, वी कैन डू। मैं यहाँ पे बड़े एग्जाम्पल्स बिल्कुल नहीं दूंगी कि मैं आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दूं, और वो सब आपको पता होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये है, इफ दे कैन डू, यू कैन डू। एनीबडी फ्रॉम अस, आपके सामने हम देख रहे हैं इतने सारे लोग हैं, है ना, हु आर डूइंग वेल। तो जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, राइट। और दूसरा, हाँ, यहाँ पे भी फिर जब हम ये वाली बात कहते हैं कि देखो वो कर पा रहे हैं हम नहीं कर पा रहे, तो हमें फिर उनके सपोर्ट दिखने लगता है, सपोर्ट सिस्टम देखने लगता है कि वो अच्छी फाइनेंशियल फैमिली से हैं, तो उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनके लाइफ पार्टनर ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। हेयर अगेन वी विल स्लिप इनटू नेगेटिविटी। तो एक टर्म होता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि आप जो सोच रहे हैं उसको सोचने का तरीका बदलना है। एक्सेप्ट करिए अपनी, जो कहते हैं हम अपनी कमियां भी तो एक्सेप्ट करते हैं ना, ठीक है मैं एक चीज नहीं कर सकती, ओके, राइट। अगर हम बात करें चश्मे की, आज से बहुत साल पहले, लाइक अगर हम अपने 2 जनरेशन अप जाएं, तो इट वाज अ ह्यूज डिजास्टर, जिसकी नजरें खराब हो जाती थी और चश्मा लग जाता था। अगर मैं अपनी दादी के टाइम की बात करूँ तो आई हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज कि अरे वो तो चश्मा पहन के कहीं बाहर नहीं जाना था, शादी नहीं होगी तुम्हारी, एंड पता नहीं क्या क्या, इट दिस वाज। अब हम कमरे में ये भी गिनना भूल जाते हैं, रियलाइज करना कि हाउ मेनी स्पेक्स पीपल आर देयर। अरे अब तो स्पेक्स स्टाइल स्टेटमेंट हो गया है। एग्जैक्टली हाँ, हम, आप मुझे बताओ, कभी भी एक कमरे में बैठे होते हैं, हम हाँ याद नहीं रखते कि 7 में से 5 लोगों ने चश्मा पहना था। इट हैज बिकम अ सो मच अ पार्ट ऑफ अस। अब कहने को वो भी एक स्पेशल नीड ही है, उतार दो तो विजन चली जाती है ना, ढूंढते रहो, टूट जाए तो फौरन से बनवाना पड़ता है उसी दिन, चाहे आप कितनी भी जरूरी चीज आप कर रहे हो, है ना, आपको उसी दिन कहीं भी रह के, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको रुक के एक्स्ट्रा पैसे दे के वो बनवाना पड़ता है ना। तो वही कह रही हूँ, जिस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया है वो हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है ना। अब मान लीजिए, जैसे कि मैं छोटा सा इसी में एग्जांपल यूज कर रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, बोथ ऑफ देम वेयर स्पेक्स, अब वो तोड़ते बहुत ज्यादा है, तो मैं 2 चश्मे एक्स्ट्रा बनवा के रखती, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट स्ट्रेस नहीं चाहिए मुझे। अब मैंने सीख लिया है कि इन्हें तो तोड़ना ही तोड़ना है, मैं कितना भी डांटू कुछ भी करूँ। तो व्हाट आई हैव डन इज, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग ओवर इट, मैं एक चश्मा, दोनों का एक एक चश्मा एक्स्ट्रा बनवा के रखती हूँ। आई स्कोल्ड देम, ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि हाँ भाई चश्मा तो बना हुआ है तोड़ लो, ठीक है, तो डांट तो उन्हें उतनी ही पड़ती है, बट मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना कि जब पैसे खर्च करने ही है। तो अब ये मैंने अपना स्ट्रेस कम करने का तरीका ले लिया है। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है ना, बड़ी बड़ी चीजें नहीं देखनी है कि ये करो वो करो, बड़ा सब मतलब पॉजिटिव रहो, माइंडफुलनेस में रहो, ये सब चीजें गूगल पे बहुत हैं, आप बिल्कुल इफेक्टिव हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आपके स्ट्रक्चर में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके सेटअप में, आपके सोशल सेटअप में, फैमिली में क्या चीज हो सकती है ना। मैं कहूं कि भैया आपका मूड ठीक नहीं है, आप घूमने निकल जाइए, मे बी इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो आपको वेस्ट तो अपनी लाइफ में से खुद ही निकालने होंगे। मैं या मीनाक्षी मैम या आप जैसे और लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन डिसीजन तो आपको ही लेना होगा। और उस डिसीजन के लिए सबसे पहले अपना मेंटल सेट बनाना होगा। मेंटल सेट बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसको मैं अभी कह दूं कि बेटा ये पेज कहानी है पढ़ लो, है ना, बच्चे को कहानी मिली, उसने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ भी लिया, और मैं उससे सवाल पूछना शुरू कर दूं। वहीं पे एक दूसरा बच्चा है जिसको मैं बोलूं कि बेटा ये कहानी है बहुत अच्छी, आप पढ़ो, पढ़ने के बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी, तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला बच्चा ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाएगा? वो जो दूसरा बच्चा है जिसने पहले से माइंडसेट बना लिया कि मुझे आंसर्स करने हैं, मुझे इस कहानी को इस तरह पढ़ना है कि मैं बाद में जवाब दे सकूं, तो वो डेफिनेटली अच्छा करेगा। तो माइंडसेट ना बहुत कमाल की चीज होती है, आपने जिस चीज के लिए बना लिया उससे कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाता है, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको बस ये करना है, उसी में से ढूंढते रहना है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ अपने
कहना कि अपना टाइम व्यतीत करने के लिए, अपने, है ना, कि क्रिएटिवली मेरा टाइम निकल जाए, टाइम पास हो जाए। दूसरा, मेरा रोजी रोटी चलती रहे, मेरी फैमिली चलती रहे, जितने भी इश्यूज हैं आसपास सब कुछ लेके चलना है, छोड़ना कुछ नहीं है, कोशिश पूरी करनी है। लेकिन कोशिश करने का ये मतलब नहीं है कि अगर हमें कहीं से नेगेटिव मिला तो हम वहां, देखो हमने कोशिश तो पूरी करी, हमें नहीं मिला, जरूरी नहीं, किसी को नहीं मिलता सब कुछ कोशिश करने पे, किसी को भी नहीं। यहाँ बैठे सुनने वाले जितने लोग हैं सबको हर चीज नहीं मिली होगी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, हर चीज नहीं मिली होगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड स्टार्ट स्मॉल। गोल ना, जैसे छोटे बच्चों को भी जब मैं पढ़ा कराती हूँ या किसी भी, जब मुझे प्लानिंग सिखानी होती है, तो व्हाट आई डू इज आई हेल्प देम मेक टाइम टेबल्स, गोल सेटिंग। गोल तो हमने ले लिया, बिल्कुल एकदम 100% लेके आएंगे, और लास्ट अभी 2 महीने पहले हम मुश्किल से 40% लेकर आए हैं, तो आप कैसे करेंगे? आप 40 से पहले एक स्टेप लीजिए, 2 स्टेप लीजिए, जितना कर पा रहे हैं उतना कीजिए, बट कुछ ऐसा कीजिए जिसका रिजल्टेंट आपको अच्छा लगे। किसी दूसरे को देख के नहीं करना है कि उसने ये किया था तो मुझे भी यही करना चाहिए, नहीं। मुझे क्या अच्छा लग सकता है, मुझे क्या फीड चीज करूं जिससे मुझे खुशी होगी, है ना। हो सकता है कि एक छोटा सा मैंने कोर्स कर लिया, मैंने कुकिंग करना शुरू कर दिया और मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरे को हो सकता है कि कोई डिग्री पढ़ के, कोई नई डिग्री लेके उसे अच्छा लग रहा है कि अब खाली बैठे क्या करना है, मैं रीड तो कर ही सकती हूँ, चलो मैं एक कोर्स कर लेती हूँ, मैं डबल मास्टर्स कर लेती हूँ ना। ये अपने आप चूज करना है। अब दूसरे ने अगर डबल एमए के लिए अप्लाई किया है ना, एक बार उसने मास्टर्स किया हुआ है मान लीजिए साइकोलॉजी में, वो दूसरी बार सोशियोलॉजी में अप्लाई कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छा लगे, है ना। तो आपको अपने लिए एक लिस्टिंग करनी है कि व्हाट ऑल आई कैन डू, व्हाट ऑल प्लेजर्स मी। वो कोई छोटी सी भी चीज हो सकती है ना। सबसे जरूरी है बिजी रहना। जितना अभी बहुत अच्छा मैम ने बताया कि खाली जब रहते हैं हम, तो हम सब, चाहे हमें कोई प्रॉब्लम हो या नहीं हो, खाली नहीं रह सकते। ये भी एक सिंड्रोम बन गया है आजकल कि लोगों को बिजी रहने की आदत हो गई है ना। अब ये थोड़ा खाली नहीं बैठ पाना प्रॉब्लम भी है, दूसरा बिजी रहना एक थेरेपी भी है, दोनों चीजें हैं। तो हमारे लिए क्या वर्क करेगा, है ना। अगर हम खाली हैं और नेगेटिव थिंकिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप बिजी रहें, है ना। तो ये तो हमें पता लग गया बिजी रहना। मेन जो इसमें जिस्ट है, जो मैजिक है सारा, वो है कि बिजी किस चीज में रहना है ना। अपने आसपास का कोई छोटा सा एक्टिविटी लीजिए, कोई छोटा सा गोल बनाइए। आई डोंट नो हैव यू एवर सीन और नॉट, कुछ लोग बड़ी उम्र में जाके, मतलब बिल्कुल रिटायरमेंट के एज में, वो स्वेटर बुनना सीखना शुरू करते हैं, और बहुत अजीब लगता है कि कोई नहीं पहन रहा आजकल स्वेटर, है ना, बुना हुआ। ठीक है, आई हैव अ क्लाइंट जिन्होंने अभी मतलब वो आर्मी रिटायर्ड हैं, एंड उन्होंने स्वेटर बुनना शुरू किया है, एंड सब उनको देख के कहते हैं बुने हुए स्वेटर पहनता कौन है जो आप इतना सोच रहे हैं, देख रहे हैं। बट ही फील्स गुड विद ईच नॉट विच ही मेक्स। ही फील्स कि मैंने एक अचीवमेंट कर ली, पूरी एक लाइन जब सही बन जाती है, वही उसको मोटिवेट कर रहा है ना। तो इट हैज वर्क फॉर हिम, है ना। मेरे पास उनको रेफर कर जब किया गया, थोड़ा वो उनकी लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई थी, तो वो डिप्रेशन में थे, तो उनके बच्चे लेकर आए थे उनको, एंड दे वर लाइक कि ये कुछ इनको कुछ डिल्यूजन या हालुसिनेशन तो नहीं हो रहा कि इन्होंने स्वेटर बुनना शुरू कर दिया, इज ओके। तो आई वाज लाइक व्हाई डू वी थिंक सो मच कि मतलब आर्मी रिटायर्ड इंसान स्वेटर बुन रहा है बैठ के। तो मैंने कहा अरे तो वो तो स्किल है, वो किसी कोई भी कर सकता है। पायलट जो होता है वो क्या साइकिल नहीं चलाता क्या? कल को वो एरोप्लेन से उतर के साइकिल चलाने लगे तो आप तो कहेंगे कि क्या हो गया। व्हेन आई वेंट इनटू इट, एक्चुअली इट वाज नथिंग, ही जस्ट फेल्ट गुड। ही फेल्ट गुड व्हेन ईच नॉट वाज मेड करेक्टली। जब कोई एक डॉल बन जाता, मैंने उनसे पूछा आप क्या बनाते हैं, कहते कोई पहनता नहीं है, तो उनके पास एक डॉग था, वो उसी के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। फिर उन्होंने बनाना शुरू किया, वो क्या कहते हैं, उनके घर में लड्डू गोपाल होते थे, लड्डू गोपाल के लिए स्वेटर की खरीद के लाते हैं स्वेटर। तो मेरे को आ गया है तो मैंने बनाना शुरू किया। ही इज गेटिंग हैप्पीनेस इन दैट। और वो एज है उनकी, उनके पास टाइम है, तो वो क्यों नहीं करे, है ना। और ये फैसिनेशन पता लगा आज का नहीं है, वो बचपन का है, जब मदर यूज्ड टू डू इट। मदर ने बंद किया तो फिर वाइफ उनकी वर्किंग थी, वाइफ ने कभी नहीं किया, बच्चों ने कभी नहीं किया। बट ही यूज्ड टू, ही फील समवेयर, व्हाट आई फेल्ट इज ही नेवर सेड इट स्ट्रेट कि आई फील आई एम क्लोज टू माय मदर। आई मीन ही
है ना, क्योंकि वो मम्मी की बातें बहुत करते थे व्हेनेवर हम निटिंग, जब भी हमको हमने वो हाथ में पकड़ाया। सो कौन सी चीज आपको अच्छी लगेगी नहीं पता। हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें से कुछ चीजें हम अपना कहते हैं ना कि करियर का भी वो कर सकते हैं। अब मैं इसी में बात में कह रही हूँ, अगर ये मान लीजिए इनको अगर फाइनेंशियल दिक्कत होती, तो ये फिर डॉग का बना के, लड्डू का, गोपाल का बनाने के बजाय छोटी छोटी चीजें बना के छोटे छोटे मेलाज में लेके भी तो जा सकते थे, है ना। ठीक है, शायद बहुत इनकम नहीं होती, लेकिन खाली बैठने से तो अच्छा होता। ठीक है, तो बहुत बड़े गोल नहीं लेके, सबसे पहले तो आप देखिए, अगर आप केयर गिवर हैं तो आपके बच्चों को या आपके जो भी पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, पेरेंट्स हैं, जिसको भी अगर ये इशू है, तो वो किस चीज को पसंद करते थे, वो क्या कर सकते हैं, उनकी स्किल्स क्या क्या हैं। सब कुछ खत्म नहीं होता है, आप देखेंगे तो बहुत कुछ बाकी होता है, कुछ चीजों में प्रॉब्लम आने लगती है। हम बिल्कुल 100% डे वन से बीमार नहीं हो जाते हैं, डे वन से हम बेड रिडन नहीं हो जाते हैं, है ना। तो इतनी जल्दी होप छोड़ देना कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है, वो सबसे ज्यादा डैमेज करता है। और सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं करता, वो फिजिकली भी डैमेज करता है ना। ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं आजकल, प्लेसेबो इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट, अगर आप लोगों ने सुना हो तो इनका सच में असर होता है। प्लेसेबो इफेक्ट में यहाँ समझाना चाहूंगी, किसी के साथ कभी हुआ भी होगा, कभी होम्योपैथिक की दवाई लेने जाएं अगर, तो डॉक्टर अगर कोई बच्चा है साथ में तो उसको खाली डिबिया दे देता है शुगर की। वो दवाइयां अगर छोटे बच्चे ने खाई हो पहले किसी बीमारी में, तो उसको चाहिए होती है। अगर वो आपके साथ गया है तो उसे पता है मीठी गोलियां हैं और चाहिए, वो वहां बोलने लगेगा कि मेरे को जुकाम हो रहा है, मुझे दे दो, है ना। और वो एक्चुअली असर करता है ना। और ये सिर्फ बच्चे पे असर नहीं करता, बहुत सारी बीमारियों में रिसर्च है ये, कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को तो सिर्फ सर दर्द हो रहा है, लेकिन सर दर्द की बजाय कोई इसका रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा, डॉक्टर को लग रहा है कि सिंपल माइग्रेन है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि मुझे तो ब्रेन ट्यूमर हो गया और इसको पकड़ में नहीं आ रहा है। आप उनको ब्रेन ट्यूमर कह के उनको एक कहना कैल्शियम की टैबलेट्स पकड़ा दीजिए, उन पे असर होने लगता है ना, उन पे असर होने लगता है उस दवाई का कि हाँ मैं तो ठीक हो गया। एक बहुत अच्छा गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हो, लेकिन वो जाए और हाँ जी बोलिए दवाई क्या है आपको, ये सिम्टम्स जी, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, अच्छा आपको ठंड भी लग रही थी क्या, हाँ हाँ ठीक है समझ गया, नहीं सुनिए तो सही, मेरे पैर में भी दर्द, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है ना, दवाई लिख दी उसने, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर। दूसरे के पास गए, वो बिठा के आपसे बात कर रहा है कि अच्छा और क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि मेरे तो पैर भी दुख रहे हैं, अच्छा बड़ी, तो फिर तो चलने में दिक्कत हो रही होगी आपको, हाँ अरे मैं क्या बताऊं, इतने दिनों से मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मैं तो सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। दवाई उसने भी समझ लिया कि वही 3 प्रॉब्लम है उसको, वही सेम चीज उस दवाई उसने भी दी जो पहले डॉक्टर ने दी थी। लेकिन दूसरे डॉक्टर के यहाँ से निकलते निकलते मेडिकल स्टोर जाते जाते हम 20% ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सुना। हमें लगा कि इसने सुन लिया मतलब समझ लिया, पहले वाले ने तो सुना ही नहीं था। एक्चुअली मेडिसिन ऐसी ही होती हैं, क्या कहते हैं, जेनरिक। जब पता चल गया कोई डिसऑर्डर है, उसमें 3 चीजें मुझे पता चल गई, तो मुझे पता लगे ये टाइफॉइड है, ये मलेरिया नहीं है, तो मुझे कौन सी दवाई देनी है। यहाँ मुझे पता चल गया मलेरिया है, टाइफॉइड नहीं है, तो कौन सी दवाई देनी है। अब उसमें आप 10 सिम्टम और बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दवाई वही है। दवाई दोनों ने सेम दी, लेकिन असर हमारा दूसरी जगह पे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास होता है वहां पे, हमारा माइंडसेट होता है वहां पे, हमें लगता है कि उसने सुन लिया है तो अब हम ठीक हो जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड प्लेसेबो इफेक्ट्स। अब प्लेसेबो इफेक्ट यहाँ देने के लिए कोई नहीं है, तो वो हमें खुद को देना है ना। अब खुद को कैसे देना है? अब मतलब वो कहते हैं ना कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, है ना। तो वो तो रियलिटी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कहूँ, अभी मेरे पास ही ये बात से देखिए, मेरे पास एक स्टोन था, चला गया। वो स्टोन को मैंने, मार्बल स्टोन है, सिंपल कार्व्ड, कहीं से मुझे मिल गया था, मैं उठा लाई। तो हमारे लिए स्टोन था, हमने उसको फ्लावर पॉट में रखा हुआ था, ऐसे ही जैसे हम पत्थर रख देते हैं, है ना। मेरे किसी ने देखा उसको कि तो बिल्कुल शिवलिंग शेप का है, तो इसको आपने यहाँ पॉट में रखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, आप इसको कहीं और रख दो। तो उस दिन से वो पॉट में से निकल के मेरे घर में आ गया है और वो सही से रखा हुआ है, राइट।
तो ये चीज तो है, आप मानते हो तो आपको लगता है उस चीज में ताकत है। तो जब पत्थर में हम वो विश्वास कर सकते हैं तो अपने आप में क्यों नहीं, है ना? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, आपके छोटे छोटे स्किल्स जाने लगते हैं धीरे धीरे, पर हमेशा एकदम से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, है ना? ठीक है, हर किसी का डिटोरेशन अलग होता है ना? लेकिन अगर इसमें अभी मैं खुद भी पिछले कुछ दिन से पढ़ रही थी कि ट्रीटमेंट्स काफ़ी आ गई हैं, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज आ गई हैं, तो उस पे भरोसा रखिए, ठीक है? दवाइयाँ मिस मत कीजिए, जो डॉक्टर्स ने बोला है वो लाइफ़स्टाइल अपनाइए, लाइफ़स्टाइल हेल्दी रखना तो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। यकीनन जो डिटोरेशन है, वो लाइफ़स्टाइल हेल्दी रखने से बहुत स्लो हो जाएगा, है ना? ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉब्लम हो गई है अगर तो हम फिर एकदम ही बिल्कुल कुछ दिनों में ही हमारा पूरा शरीर खराब हो जाएगा, नहीं, नॉट नेसेसरी। डू नॉट थिंक दैट नेगेटिव, ठीक है? जानती हूँ बहुत मुश्किल है मेरे लिए कहना और आपके लिए वो सामने से देखना। आपके बच्चे को अगर है प्रॉब्लम, तो वो मदर्स के लिए साइकोलॉजिकली भी कितना मुश्किल है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, आई अंडरस्टैंड। लेकिन हमें कहीं न कहीं अब पता है कि उसकी लाइफ़ की प्लानिंग हमें थोड़ी अलग करनी है, बस। और ये तो सभी के साथ होता है ना? जो सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे हैं, जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं, वो भी बिल्कुल वैसी ही स्ट्रैटेजीज़ प्लानिंग होती है क्या उनकी जैसी हम बनाते हैं? हमने बचपन में सोच लिया हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। ज़रूरी नहीं है ना, बड़ा होते लगा कि वो तो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, वो तो सिर्फ़ ड्राइंग करना चाह रहा है। तो हमें स्ट्रैटेजीज़ लाइफ़ की बदलनी पड़ती है ना, हमें उसके करियर के प्लान बदलने पड़ते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि ड्राइंग को हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम इसे फ़ैशन में डालें या हमें इसे फाइन आर्ट्स में डालें। हम करने लगते हैं ना, जो करियर्स हमारे लिए एग्ज़िस्ट नहीं करते थे, है ना? जिनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो हम अपने बच्चे के लिए प्लान करने लगते हैं। क्यों? उसकी कैपेबिलिटीज़ को देख के, क्योंकि इसे खड़ा तो रखना है ना? यहाँ भी वही करना है। यहाँ भी वही करना है कि आपके आस-पास जो रिसोर्सेज़ आपके पास हैं, जितना पैसा, जितना सोशल सपोर्ट, है ना? उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्लान मत कीजिए कि पता लगे हमने एक बिल्कुल कि बच्चे के लिए करना है या अपनी फैमिली के लिए करना है, एक झटके में हमने कुछ कर दिया और अगले स्टेप पे हम रुक गए। तो वो फिर बहुत निराशा होगी और दूसरे को भी जिसके लिए आपने किया, वो जब आपको स्ट्रेस में देखता है, परेशान देखता है, तो वो और नेगेटिव डाउन जाता है। मीनाक्षी मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी मैम, मैं ये कहना चाहती थी कि कुछ एक दो सवाल आए हैं। एक हमारे मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर उनको एंजाइटी होती है और एक डर लगता है कि आगे जाके क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो फियर है या जो एंजाइटी है, उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? एग्जैक्टली देखिए, फ्यूचर फ्यूचर के बारे में हम जितना सोचते हैं, हम सबको होती है एंजाइटी, वो तो है ना। अब मुझे भी नहीं पता, मुझे अगर छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए, मुझे भी नहीं पता। तो फ्यूचर की एंजाइटी को सबसे पहले तो अगेन, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपका थॉट पैटर्न क्या है, आपके दिल में सवाल क्या है, उसको रिफॉर्म करना है। कि अगर हम ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं फ्यूचर में बिल्कुल भी काम नहीं कर पाऊंगा, तो उसका जवाब आएगा नहीं, है ना? तो फ्यूचर के बारे में देखिए, मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मुझे पता है मेरा हैवी वेट है, मैं रेस में दौड़ नहीं सकती हूँ, तो मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करूंगी जहां मुझे दौड़ना है ना? मुझे अगर नया घर लेना है तो मैं पहाड़ पे जाके नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे को पता है मैं पहाड़ चढ़ नहीं सकती हूँ, चाहे मुझे पहाड़ पे रहना कितना भी पसंद हो, राइट? तो एंग्जाइटी की जो रियल डेफिनेशन है, इट इज अ बेसलेस फियर, है ना? जिसका कोई बेस नहीं होता, वो सिर्फ एक डर होता है। वो डर होता है कि क्या होगा, है ना? तो सबसे पहले तो इसी को क्वेश्चन कीजिए कि क्या होगा हद से हद। किसी की भी लाइफ में क्या होता है, किसी का करियर बनता है, किसी का नहीं बनता है ना? कुछ हमने अपने आसपास देखे हैं ना, बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल सब कुछ स्मूथ, लेकिन जरूरी नहीं है कि लाइफ में दे एंड अप वेरी नाइसली। अगर आप अपनी ही बात याद करें, शुरू में आपकी क्लासमेट्स में जो बिल्कुल टॉपर रहे होंगे, कुछ बैक बेंचर्स रहे होंगे, आप कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि जो बैक बेंचर्स है वो हमेशा पीछे रह गए और जो टॉपर्स थे वो हमेशा टॉप पे चले गए।
राइट? सो प्लान करना अच्छी बात है फ्यूचर का, लेकिन अगर जब नहीं समझ आए ना, नहीं समझ आए तो टेक नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप लीजिए कि इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? मैं और यही कहना चाहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट, कि बजाय मेरे आपसे आपकी बात सुनते सुनते मुझे ये ख्याल आया है कि बजाय सोचने के लिए, जैसे आपने राइटफुली सेड कि क्या होगा फ्यूचर में, हम कोई कोई नहीं कह सकता है, अच्छा भी हो सकता है और नॉट सो गुड भी हो सकता है, लेकिन आज मैं किस स्टेज पे हूँ, क्या आज मैं कम से कम अपने घर के अंदर चल सकता हूँ या कभी थोड़ा सा सपोर्ट लेके मॉल तक भी जा सकता हूँ, तो दैट्स एक्सेलेंट। हाँ, मैं कितना कर सकता हूँ, मैं उस बेसिस पे प्लान करूं, बजाय इसके सोच के कि मैं शायद मे बी डाउन द लाइन मैं शायद बिल्कुल ही ना चल पाऊं, तो अगर उसके बारे में सोचते सोचते मैं और भी बीमार हो जाऊंगा। आज भी मैंने खत्म कर लिया ना अपना फिर, है ना? और बिल्कुल, पॉसिबल, आज भी बिल्कुल खत्म हो गया इसी बिल्कुल चक्कर। पॉसिबल है। देखिए किसी का भी नहीं पता ना, मैं जी बिल्कुल हल्दी हूँ मान लिया, लेकिन कल क्या होगा नहीं पता ना मुझे भी। कल जी। कोई अटैक आए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आई मीन यू नेवर नो। तो हम्म, प्लानिंग, यस, हम बहुत होपफुल होके प्लान करते हैं, करना भी चाहिए थोड़ा स्ट्रैटेजिकली, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही होगा। जी हाँ, ये है कि जब हम नॉर्मली डिसाइड करते हैं और जब हम किसी डिसऑर्डर के साथ डिसाइड करते हैं तो थोड़ी सी एंग्जाइटी यहाँ ज्यादा होती है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों का यही है। एंग्जाइटी का जो ट्रीटमेंट है ना, तो थेरेपी है। एंग्जाइटी की, फोबियाज की थेरेपी यही है, उसको जितना आप फेस करेंगे वो उतना जाएगी। किसी भी एंग्जाइटी के पेशेंट को हम हमेशा एंग्जाइटी या फोबिक सिचुएशन से दूर नहीं करते, बट एक्सपोजर कम कर देते हैं। कि अगर उसे पानी से डर है तो मैं उसे ले जाके समुद्र में खड़ा नहीं करूंगी, मैं उसके सामने एक ग्लास पानी रखूंगी। जब उसका उस डर पानी से खत्म हो जाएगा तो मैं उसके आगे एक बड़ा कटोरा रखूंगी, फिर मैं उसके आगे बाल्टी रखूंगी, है ना? फिर बाल्टी में पैर डाल के बिठाऊंगी, है ना? धीरे 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 करके, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। हमें भी यही करना, बिना देखे फ्यूचर बेबी का। स्टेप्स। एग्जैक्टली exactly. तो जो नई फ्यूचर का समझ में आ रहा है, तो व्हाट आई कैन डू राइट नाउ, उसके हिसाब से मैं प्लान करूँ, अगले हफ्ते का, अगले महीने का, एक साल का। एंड इट्स ओके, कई बार पूरी चीजें पूरी नहीं होती, इट्स ओके। बहुत सारी चीजें जरूरी तो नहीं है ना कि हमने एक साल के लिए प्लान किया था और हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो बीच में रह गया। इट्स टोटली ओके। यू टर्न शुड बी ऑलवेज अलाउड, लाइफ में यू टर्न शुड बी ऑलवेज अलाउड। नहीं समझ आ रहा, नहीं हो रहा, ठीक है, थोड़ा समझदारी से करेंगे कि हाँ भाई, अगर मेरे पास फाइनेंसिस लिमिटेड है और मैंने 10 जगह पैसा लगा दिया, है ना, वहां पे थोड़ी प्लानिंग में समझदारी करेंगे, बस। अदरवाइज ट्राई कीजिए, नई नई चीजें ट्राई कीजिए, है ना? जो नहीं किया लाइफ में वो कुछ कोशिश कीजिए करने की। जी मैम, मैं यहाँ हमारी मेंबर जो है शालिनी, उन्होंने एक कमेंट डाला है चैट में कि स्टार्ट डूइंग स्मॉल थिंग्स योरसेल्फ एट होम एंड इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। आई इफ आई मे Agreed. आस्क शालिनी, just open your mic, Shalini, and just say a few words. What is your experience? Others will learn from you. Switch on your mic. Shalini, Mike. Switch on your mic, Shalini. Yeah. Yeah. Hi, friends. I'm Shalini Monga this side. I'll tell you what my routine is. I get up in the morning, brush, etc. Then I make tea for myself and Papa. Sometimes the saucepan has fallen on me. It has, in fact, in the evening only, I was just holding a cup of tea. I don't know what happened. It tilted and it fell on my slacks, and my slacks got all dirty. But I did not feel defeated. I went to the kitchen, got a cloth, wiped that stain off the floor. एंड टू स्मॉल स्मॉल थोड़ा टेबल लगा रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग पूरी टेबल का, एक प्लेट लगा दो, डू स्मॉल स्मॉल, किसी का पानी का ग्लास रख दो, किसी को तो हेल्प, लाइक दिस इज एवरीबडी इज गॉट मेड एंड सर्वेंट इश्यूज, इट्स यूनिवर्सल, राइट? सो लाइक इफ यू पुट द प्लेट, तो इफ यू आर 4 members इन द फैमिली, 4 प्लेटें लगा दोगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल दैट डिफिकल्ट, आई थिंक. एंड Bilkul. if It you will have a it will walk, help your mother, or it will help it the will other help your family member, servant, it and will it help will your give, mother, yeah, and it will give you confidence absolutely. कि मैंने आज कुछ तो किया. Bilkul. बट सम पीपल टेल मी कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं, मोबाइल है ना, मोबाइल खोलो, उसमें आई एम टेलिंग इट रियली हेल्प्स. आई पुट माय डायर ऑन टू इट. उसमें वर्ड गेम्स होती है, योर माइंड विल रिमेन एक्टिव. There's so many word this, word surf, word this, word that, and you'll get addicted to it.
You'll start looking forward to it, you'll start liking it. And at the There end are of the games that you can play in groups also. yeah, and at the end of the day, you'll be so happy. हाँ मैंने इतना बड़ा word बना लिया. You'll be happy. You'll feel like buying yourself an ice cream because you deserve an ice cream that time. Because हम लोग पापा करते थे. Acha, chalo. Thank you, Shalini. I think we'll That get was someone else also. Bipasha, you wanted to say something? No, I just said, Shalini, that is very nice. She Very keeps nice. Yeah. occupied not only with these little household work. Actually, What she's talking is about girls. Maybe boys will do different things. Help your father, whatever he is doing. I mean, look into his accounts or look into his paperwork. Can I help you? All that kind of thing. Shalini is not only occupied with little things at home, she actually works for MS Society. And the amount of work she does is actually, it really helps us. She's always tracking what parcel has gone where, who is done, whose birthday wishes. 120 registered MS patients at the Please moment. keep. Yeah. It is not easy to wish each and everybody on a video call. She does it. We give full credit for that. And because she's involved, she keeps well. If you see Shalini, you won't be able to make out she has any. So आप अगर चुपचाप बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, हाथ भी नहीं हिलाओगे कि मैं बीमार हूँ, कि भाई MS हुआ तो मैं बस जॉब भी नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं, जॉब नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, अब मुझे तो पहले ब्रेक चाहिए. No, take leave, take rest, get well, go back to your keep job. yourself occupied. If you can't walk, hold the wall and Bipasha, walk. sorry. No. Oh. Bipasha, there's a question from some mother. Yeah. कि मेरी बेटी को MS है, मैं अभी बेटी को जॉब ले के लिए भेजना चाहती हूँ, तो उसको अकेला भेजना सेफ होगा कि नहीं होगा? यही तो एक सवाल है जहां पर तुम उस बच्चे की कॉन्फिडेंस ले रहे हो. उस बच्चे को कॉन्फिडेंस दो कि वो नौकरी करने जा रही है, तो वो अकेली जाएगी. आप उसको हिम्मत दो. ये सवाल, that is where the lack of confidence begins. शालिनी का वे मैटर है. जैसे उनके फैमिली में इसको अकेले जाने नहीं देते हैं. आई ऑलवेज टेल हर, गो अलोन, इट यू विल गेन कॉन्फिडेंस. लोग दुनिया घूम रहे हैं व्हील चेयर में, अकेले अकेले. आप तो चल रहे हो, क्यों नहीं जा सकते हो? वाई आर, आई मीन, एट योर एज यू शुड बी कंप्लीटली कॉन्फिडेंट. जॉब कर सकती है वो जो भी है, जिनको जॉब दिलाना चाहते हैं. It is not that भाई MS हुआ तो जॉब नहीं कर सकते, she's lost all confidence. No, motivate her कि यस बेटा, आपको मैं ये हेल्प कर दूंगा, उसके बाद आप अपने आप जाओ और जॉब करो. एक दिन जाएगी, 2 दिन जाएगी, तीसरे दिन she will be settling down. डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, देखिए जैसे हम हर किसी के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, है ना. हमें अपने एग्जाम्पल्स खुद ही बनाने होंगे, ठीक है. जैसे कि अभी मैम ने कहा कि किसी को, जैसे शालिनी ने एग्जाम्पल दिया कि आई एम हेल्पिंग माय मदर, इट गिव्स मी, बट मे बी बॉयज को वो थोड़ा, हमारे फैमिली सेटअप्स अलग होती हैं. अपने काम खुद बनाइए. यहाँ मत सुनिए कि दूसरे ने क्या किया, अभी तो मैं प्लेट लगाई तो आज मैं प्लेट लगा के देखती हूँ. अपना खुद बनाइए. जॉब नहीं हो रही, चेंज कीजिए. रुकिए मत कि एक जॉब नहीं हो रही, है ना. आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ होता है. अगर मैं कंटेंट राइटिंग कर सकती हूँ या मैं सिर्फ टाइपिंग का काम लेके कहीं से कर सकती हूँ, तो आजकल बहुत कुछ है मार्केट में. गूगल खोलिए, रिसोर्सेस खोलिए, आपस में एक दूसरे से बात कीजिए. रुकिए मत. चलना बंद हो गया है, व्हील चेयर पे चलिए, लेकिन स्टार्ट डूइंग. कि मैं ऑफिस सिर्फ चलने की वजह से, अगर मैं जैसे मैं डिलीवर करती हूँ, ट्रेनिंग डिलीवर करती हूँ, तो मैं तो डिटरमाइंड हूँ कि अगर मेरे पैर कभी रुक गए तो मैं व्हील चेयर पे जाऊंगी, क्योंकि मेरे पैरों की जरूरत नहीं है वहां, है ना. मेरे वर्ड्स की जरूरत है वहां, है ना. तो मैं तब जॉब नहीं छोड़ूंगी. मान लीजिए मेरे गले को कुछ हो गया, तो मैं क्या करूंगी? मैं लिखना शुरू करूंगी, है ना. मैं लिखना शुरू करूंगी, क्योंकि दिमाग तो चल रहा है, थॉट्स आ रहे हैं. तो आई स्टार्ट राइटिंग. तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा जॉब में चेंज लाइए, थोड़ा डिमांड्स में. कंपनीज भी कई जहां आप काम करते हैं, वहां ज्यादातर कंपनीज इसमें सपोर्ट करती हैं, ठीक है. मैं ये नहीं कहूंगी कि डिफिकल्टी नहीं होती करियर में, होती है, बिल्कुल होती है. हर जॉब प्लेस पे होगी, बहुत पॉलिटिक्स होती है, बट उसके बावजूद आप जगह बना सकते हैं. बनाइए, रुकिए मत. जो छोटा सा काम आप शुरू कर सकते हैं. दूसरा,
आसपास ही नहीं, आप ना थोड़े याद कीजिए हॉबीज में आपको क्या पसंद था। हॉबी परस्यू करना बिल्कुल गलत बात नहीं है। हमारे इंडियन जो एशियन सेटअप है ना, इसमें हॉबीज परस्यू करना बड़ा पीछे सा रहता जा रहा है ना। वो बचपन में ही जब हम पढ़ने लगते हैं तो वो धीरे 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 11th 12th आते आते वो कहीं पीछे हो जाता है कि अब पढ़ाई पे ध्यान दो, और हम भी कर देते हैं, और उसके बाद वो धीरे 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 पीछे ही रह जाता है। देर आर हार्डली एनी पीपल की जो सिर्फ 5 days जॉब ढूंढते हो, जहां 6 days है मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सैटरडे को मेरा टेनिस का गेम होता है, वहीं से अच्छा पैकेज मिला, हम टेनिस को साइड करेंगे और जॉब ले लेंगे। तो वो याद कीजिए, हॉबीज बहुत जरूरी एस्पेक्ट है लाइफ का। उसमें से क्या कोई हॉबी ऐसी है जो आपको किसी तरह से करियर दे सकती है? और हर किसी को करियर की जरूरत भी नहीं होती, कई बार हमारी फैमिली होती है सपोर्ट करने के लिए, है ना। जहां सपोर्ट करने के लिए फैमिली है, वहां फैमिली के कैसे काम आ सकता है। छोटी छोटी गैदरिंग्स सोसाइटी से कटिए मत, बिल्कुल ठीक जी है, उनको फेस करना होगा, मैम, जवाब देना होगा। एक सवाल और आया है. Sometimes positivity is not the answer. I think what she's trying to say is that positivity is not so easy Easy, without right. processing the grief of the diagnosis and symptoms. So, how do you suggest how do we process this grief? How do we move forward? When we are diagnosed with something like this. So, I आई think you would टोटली have अग्री। to, yeah. मैंने अपने पहले फ्यू सेकंड्स में कहा था कि इट इज इजी फॉर मी टू से एंड जी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल इट एट योर ओन पेस। जी. बट कुछ चीज़ों का जो एक्सेप्टेंस के लेवल पे ला. एक्सेप्ट, जी एग्जैक्टली। देखिए, ग्रीफ को थोड़ा टाइम तो दीजिए। साइको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त जब आपको एकदम से लगा है झटका कि आपको या आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, या आपके किसी फैमिली मेंबर को ये प्रॉब्लम है, give yourself some time to sail through प्रोसेस. that, process it, because वो जरूरी है ना। क्योंकि कुछ तो डैमेज हुआ है ना। और लाइफ में चेंज आएगा, डिटोरेशन हेल्थ में आएगी, है ना। इन सब चीजों को सिर्फ हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, नहीं 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 अच्छा होगा अच्छा होगा, नहीं। हमें सिर्फ सोचना नहीं है, हमें जी प्लान करके करना है, हमें रुकना नहीं है, जी है ना। जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं, मैंने जैसे कहा कि फैमिलीज के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों, सपोज कीजिए दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और बच्चे को कुछ हो गया, तो बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं वहां पर। कई बार किसी एक पेरेंट को जॉब भी छोड़नी पड़ती है ना। बहुत बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि फिर अगर हम यहाँ घर पे ले रहे हैं जिसका रेंट ही 40,000 है, 2 सैलरीज में नहीं होगा, हमें घर शिफ्ट करना पड़ता है, लोकेलिटी शिफ्ट करनी पड़ती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में। लेकिन हमें तब भी करते हैं जब हम कर रहे होते हैं चीजें। प्लानिंग के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे चेंजेस लाते हैं लाइफ में। हमारे बच्चे ने करियर ये चूज नहीं किया, वो कर लिया, तो भी हम चेंजेस करते हैं। तो लेट इट सेल थ्रू इन दैट वे, गो विद द विंड, बट रुकना नहीं है। टाइम लीजिए, क्योंकि वो शौक है ना। और उससे उबरिए, बिल्कुल। शुरू शुरू में सबसे पहले तो समझिए कि वो प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, बिना इस बात को समझे कि कुछ हो गया है और अब डैमेज होगा। देखिए, डॉक्टर का काम होता है हर चीज बताना। आप भी थोड़ा सा समझिए, आप इस सर्कल में हैं, लोगों से बात कीजिए, है ना। जो लोग, और सही जगह से, एवं हर जगह बात नहीं करनी है कि जिसको पता भी नहीं है हमने उससे भी बात कर ली और हम अफवाहें, अरे उनकी तो वाइफ को ऐसा हो गया था, उनकी वाइफ को भी यही था, ये हो गया। नहीं, हमें गॉसिप में नहीं पड़ना है। हम ट्रेंड लोगों से, एक्सपर्ट लोगों से बात करेंगे। एक से तसल्ली नहीं हो रही, सेकंड व्यू लीजिए, थर्ड व्यू लीजिए, जानिए, समझिए कि आगे इसका कैसे 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 क्या होगा, कितना डिटरेशन है, कितना लाइफस्टाइल हेल्दी रखने से चीजें मेंटेन रहेंगी, है ना। और जब आप प्लान करेंगे और छोटा सा भी पॉजिटिव चेंज देखेंगे, वो सेल्फ मोटिवेटिंग होगा, है ना। तो ये इसका कोई सीधा ऐसा जादू, कोई वो नहीं है कि कोई टैबलेट ले ली और हमारा ग्रीफ खत्म हो गया, नहीं। और ये एक दिन की बात भी नहीं है, ये जब तक लाइफस्टाइल में नहीं लाएंगे, क्योंकि ये रोज की बात है। ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ, आज मैंने कुछ कहा, आपने कल किया और परसों तब ठीक हो गया। इट विल गो ऑन विद द लाइफ। यू हैव टू गो ऑन एवरी डे। हर दिन एक नया स्ट्रगल हो सकता है, बट जब हम क्या कहते हैं ना कि वीडियो गेम जैसे होते हैं, बच्चे खेलते हैं, हर लेवल एक नया चैलेंज लेकर आते हैं, पर बच्चे रुकते हैं क्या? वो रुकते नहीं है कि ये मुश्किल लग रहा है, नहीं। दे कीप ऑन डूइंग इट। एक ही को बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। कैरेक्टर असैसिनेट हो गया, दोबारा कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं। तो वो चीज हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। कोशिश करिए, चलते रहिए, रुकिए मत, चाहे थोड़ा चलिए,
है ना, आगे बढ़ते रहिए। Hi, doctor. This side Rupali. So I just wanted to intervene कि मुझे 20 साल से almost 20 years से multiple sclerosis है. So अब मुझे ऐसा लगता है मैं बोर हो गई हूँ उससे. So that's okay. अब Rupali, मुझे can इतनी you आदत. put on your, will you be able to put on your camera? Actually, Okay, yeah, I anyway. can. Yeah, We if you would can, love it will to be see you. nice. It will be nice, Rupali. Is it okay if I don't? Okay, I'm that's all looking right. really Your funny. choice. Actually, I'm Okay. looking very funny this time, no? So that's okay. Staring at you. Don't worry. All of us are looking a Okay. little funny. But Meenakshi ma'am, you're looking so nice, so it's okay. Oh, okay. No, let's not go into that. I'm sorry to interrupt you. Please carry on. No. So it's been 20 years. I am with, so basically this MS is with me for 20 years now. So अब मुझे ऐसा लगता है, so this sad की spelling is smaller. So it's very easy sad पे जाना, and happiness की spelling is bigger. तो हम लोग ना वो जाने में टाइम लगा रहे हैं. It's like everybody around, people having MS. मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है to adjust with it. I talk to so many people, they are having multiple sclerosis. वो अभी तक adjust ही नहीं कर पाए हैं. तो सैड की स्पेलिंग छोटी होती है एंड इजी काम पे हम बहुत जल्दी से भाग जाते हैं. एंड हैप्पीनेस की स्पेलिंग इज बिगर, तो हम वहां पर जाने में टाइम लगा रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी विद वॉट एवर वी हैव. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एडजस्ट विद थिंग्स. दैट्स ओके. शालिनी कितना कुछ करी, मैं तो कोई काम नहीं करती हूँ घर में. अरे किचन तुम बहुत कुछ करती हो. तुम इतने अच्छे अच्छे पोस्ट डालती हो जो लोग खुश हो जाते हैं. काम वाम कुछ नहीं करती मीनाक्षी मैम. मैं अरे किचन वही एक बहुत बड़ा अरे काम यार है. मैं कुछ नहीं करती. You are Don't put getting me on a pedestal. smile on people's lips. That is a very big thing. तुम कपिल That शर्मा is की a शो most नहीं देखती difficult हो. thing. सब कहते हैं कि कपिल शर्मा का शो देख के सबका खून बढ़ जाता है. It's like that. If you are Thank posting you. a very difficult. positive post, Rupali, then you are giving somebody some very positive vibes, you know, and it Thank is you, helping. ma'am. So never So belittle what you are saying, what you are doing. No, I am not. I have adjusted with MS. मैं अब sad भी नहीं होती. Initially जब हुआ था तो मैंने इतना Most रोना धोना important. मचाया था, रोना धोना मचाया था. And अब I can give ज्ञान to everybody, be it with MS or without MS. So मतलब it is very important to be happy inside and out. You will have to be happy. The person जिसको आप रोज सुबह देख रहे हो, नॉट ज्ञान बट यस, जिस इंसान को आप शीशे में देखते हो ना, दैट पर्सन शुड एक्चुअली बी वेरी हैप्पी. एंड हमें खुश रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत फर्क पड़ेगा हमें. हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, इस चीज को क्रिप करना इज वेरी इजी. बहुत. वी विल नॉट हैव टू क्रिप फॉर थिंग्स. इट्स ओके. अब है तो है. सो अब मुझे ये समझ में आ गया, अब है तो है, मैं रो के भी इसको ठीक नहीं कर लूंगी, वो अपने आप ठीक हो जाएगा. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसा लगता है कि छोटी स्पेलिंग पे नहीं जाना है, हमें बड़ी स्पेलिंग पे जाना है. दैट्स हैप्पीनेस. So that's all. Thank I you, wanted to Rupali. share. So Thank this you, is ma'am. Rupali, हाँ? Yes. Yes, हाँ Okay. जी. जो लोग सुन रहे हैं, है ना, जैसे कि वो बोल रही थी नॉट फॉर ज्ञान, तो जो लोग सुन रहे हैं, जो अभी उस ग्रीफ वाले फेज में होंगे ना, उन्हें लग रहा होगा कि हाँ भाई ये तो इनके लिए कहना आसान है. नहीं, Exactly. रूपाली It's ने been भी 20 बहुत years. कुछ, हाँ, रूपाली ने भी बहुत कुछ देखा होगा और बहुत कुछ उसने अपने आप को तैयार किया होगा. बट दैट विल पावर एंड माइंडसेट वो आपको यहाँ ले आता है. बिलीव करके देखिए एक बार, है ना. जिनको अभी भी लग रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ इनके लिए तो चीजें आसान होंगी, ये होगा वो होगा. नहीं, उतनी ही शायद मुश्किल थी, शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल था जितना आपके पास है. बट कोशिश नहीं करेंगे. खुश रहने का हक सबको है. Ma'am, I was in 11th when I was diagnosed with MS. I was in 11th और मेरी क्लास भी सेकंड फ्लोर पे थी. I have no, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं सीढ़ियां चढ़ के कैसे जाती थी MS के साथ. तो वही कह रही हूँ कि इसको सिर्फ हाँ. वर्ड्स मत लीजिए कि ये मतलब इन्होंने संभाल लिया है तो इनको लग रहा है ऐसा. यकीन मानिए स्टेज पे आप भी पहुंच सकते हैं. बस थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है, ये मानने की जरूरत है, ये भरोसा रखने की जरूरत है कि यस वी कैन डू इट, है ना. एंड एज आई सेड कि अपने आप को ना पैट करने के लिए हमेशा लोग नहीं आएंगे. बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहिए होती है जब दुनिया आपको पैट करे, है ना. और कई बार तब भी नहीं करते, है ना. तो आपको खुद ही को पैट करना होता है, खुद ही को शाबाशी देनी होती है. सो यू नीड टू क्रिएट स्मॉल स्मॉल रीजंस कि आप कैसे, अगर आप एक सोशल पर्सन हैं तो आप लोगों से मिल के बात कर सकते हैं, है ना. जैसे कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं. अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, अपने याद कीजिए कि आपको पेंटिंग पसंद थी, क्या आपको कुकिंग पसंद थी, करके देखिए. नहीं भी पसंद थी तो नई नई चीजें ट्राई करते रहिए. जो भी, मैं बार बार एक ही लाइन कह रही हूँ कि आपके आसपास जो अवेलेबल है
जितने भी रिसोर्सेस उनको खंगालिए, फोन सबके पास है, गूगल कीजिए, आई सिंपली डालिए कि व्हाट हॉबीज, जनरली व्हाट हॉबीज आर देयर, उसमें से कोई एक आपको चीज क्लिक करती है, उसे शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, आज ही शुरू कीजिए, ये समझ के कि चलो ये लोग ऐਵੇਂ ही बोल रहे हैं, एक बार करके देख लेते हैं। भरोसे के साथ शुरू कीजिए आज ही कुछ नया, जी है ना? मैम इस वक्त हमारे, मैं देख रही हूँ जो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग अप के देयर आर सो मेनी मेंबर्स हियर हु आर डूइंग सम वंडरफुल थिंग्स अपने खुद, जैसे रूपाली पोस्ट ही डालती है, सामने मुझे तपस्या दिख रही हैं, तपस्या गुलाटी इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव, तपस्या जस्ट से हाय, जो कहाँ गायब हो गई हो, तपस्या डज सम वंडरफुल थिंग्स, she does Meditation. she Hi. does you know, she does meditation, she helps people to how to learn meditation, she has, I mean, मैं अब तपस्या के उसमें जाऊंगी तो मैं यही शाम हो जाएगी, but what I'm trying to say is that she keeps herself, and she, along with some of her friends and our members only, they have got a small little group like a little girls club, और क्या मजे लेते हैं ये लोग सब ये, और तपस्या इज द, आई थिंक, वन ऑफ द प्राइम मोटिवेटर्स, और ये लोग पिकनिक के लिए निकल जाते हैं कहीं, एक स्टेकेशन के लिए 2 जने निकल जाएंगे, वो मैं देखती हूँ तस्वीरें, ये स्विमिंग पूल में भी बैठ जाते हैं, और ये उनकी कोई और जो हमारी एक और मेंबर है उसकी हेल्पर भी साथ में बैठी हुई है, लेकिन ये लोग खूब एंजॉय करते हैं, एंड इट इज गिविंग एवरीबडी दैट वेरी पॉजिटिव feeling, they are And going because they towards the want to long word enjoy. happiness, है ना? और यहाँ मैम, yeah, Actually, Divya wants to Your say something. tapasya. I'm Yeah. Tapasya. right, I just motivate people because I love doing that. As you said कि करो, बिल्कुल same thing मैं कहती हूँ, करो करो, बस कुछ करते रहो, बैठो मत। Exactly. एग्जैक्टली। Yeah. देखिए मैं काम- यहाँ पे यही Will कहना you- चाहूंगी, हाँ What you बोलिए say? शालिनी। Remain busy. Divya Singh. one at a time, please, Shalini, let Tapasya finish, please. Sorry. Divya Singh. बोलो। नहीं, दिव्या नहीं, तपस्या was talking. नहीं, Divya has finished. Divya, did you raise your hand? तो बोलने का कोशिश कर रही है। After Tapasya finishes, Divya, you can unmute yourself before you speak. जी। I just tell everyone बस कुछ करो। मैं तो ये कहती हूँ, तुम अगर कपड़े भी धो रहे हो ना तो ये सोचो ये एक्सरसाइज हो रही है, अगर तुम बर्तन भी मान रहे हो ना तो सोचो कि तुम्हारी ये एक्सरसाइज हो रही है, बस कुछ करते रहो, खाली मत बैठो, क्योंकि खाली दिमाग तो शैतान का दिमाग होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I took everyone Divya Great, thank you. wanted Can to you say say that in something? English? Divya, unmute yourself. Divya is another person who keeps herself busy. She does a lot of chanting, you know, Buddhist chanting. And I'm sure that she must be having a wonderful chanters group that she is, because I'm familiar with the practice. So she must be having a group of friends, or she's again sent some lovely messages in the morning with about her thing. Divya, would you like to say a few words? Yeah, I got MS when I was 19. Now I'm 48 years old. So in the beginning, I used to go, why me? What did I do to deserve it? But the thing is now, over the period of time, it doesn't bother me anymore. So the thing is, don't think of the past, don't think of the future. Concentrate on your now, your present. Absolutely. It's happened. And you are the one who can make it better by doing your exercise. Don't forget your physio ever. Don't leave your job, because you need these things to keep you going. And chant, whatever God it is, because chanting has really helped me. I used to be a Sai Baba Bhakt. That time they told me just accept it. But at 19, where do you get to accept things? Now that I'm 48, it's been like a few years, I've accepted it. So it's not like pulling me back. I'm doing everything. I'm in fact going to write a book now. I'm Wonderful. writing it. Very So good. the thing is that don't stop yourself. Just go ahead and do. Just think of the present, not the future, not the past. It's your now. That's it. Thank you, Divya. Is there anybody else who would like Rohit, to I speak? guess, wants to say something. Who? Rohit. Rohit, yeah. Rohit, where are you?
Your question रोहित इस is वक्त something- जोशी मठ में बैठा हुआ है, इतनी ठंडी हवाओं में दिखाई No. नहीं दे रहे तुम। रोहित कहाँ गायब हो गए? I'm here only Ah, there one. he is. That's right. Yes, Here Rohit. only हाँ. one. There's a big Hathi Pahar behind me, if you can see it. Yeah, we can see it. Every day in the morning I sit and keep watching this Hathi Pahar. Why doesn't it move? But it keeps standing still over there. And see, and I have a miss from last 25 years. The best thing I liked about me is I had never stopped working, and it's never stopped walking. And that's the only reason I can walk now. And I was so lucky to, I was the person to get the stem cell done, and it did miracle for me. Now I can walk properly, I can eat on my own, but the only thing which I can't do is I can't write, I can't do my hands they still shakes, I can't drink without a straw and all. But that's my doctor has also told me that has happened. That will never get recovered. So be happy, and I'm happy, and I've been working, and I'm happy. I'm very happy in life nowadays. Wonderful. Thank you, Rohit. You're Dr. welcome, ma'am. Shabana, I would like to take, I think, the last question now because we are running out of time. It has come from one of the patients. One is anger and mood swings. And her other problem is that, can you suggest any cognitive exercises to help the mind? जो भूल जाने की आदत है, जो लोग भूल जाते हैं या मेमोरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए कुछ आप एक्सरसाइज या सजेशंस बताएं, and otherwise to deal with the anger and mood swings. Meenakshi ma'am, I want to add one more thing. May Sorry, I? yeah, quickly, Rohit. Absolutely. This is a free service, social service from my side. Whosoever is feeling down or low, take my number, call me up. I promise you, I'll charge you up, and you'll feel much, much better after that. Excellent, Rohit. That's wonderful. Very good, I Rohit. know you call me and charge me up also. I know that. Thank you, Rohit. So I Thank think a lot of you will be making friends across the thing today, which is also a wonderful part of this program. Thank you, Rohit. Yeah, Dr. Sir. Okay. Yeah, I read that question. It talks about aggression, anger, and I guess anxiety or something. Yes. Mood swings. Yeah, and cognitive issues. हाँ, basically, see, if it is the initial phase, अगर ये शुरुआती दौर है, तो थोड़ा सा it is normal कि थोड़ा सा mood swings आ रहे हैं, because थोड़ा सा adjust करने में time लगता है, लेकिन if it is prolonged, then we need to really work upon it directly. थोड़ा सा जब नया अगर हमें पता लगा है अभी, तो शुरू में कुछ टाइम आपस में एक दूसरे को देने की ज़रूरत है, उस जिसको ये प्रॉब्लम है उसे भी और फैमिली को भी, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है ना? तो उस टाइम पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और उसके बाद धीरे धीरे यही मूड स्विंग्स हैं जिनको कम करने के लिए बार बार कहा जाता है कि कीप डूइंग समथिंग, क्योंकि आपको कुछ ऐसा चाहिए जिससे आपको ऐसा फील हो कि यस यू आर वर्थ एंड यू कैन डू समथिंग. व्हेन यू फील दैट यू आर वर्थलेस, इट सीप्स इनटू यू, एंड फिर आपका वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन शुरू हो जाते हैं, आपको नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं, एंड दे एंड अप, जब कोई समझ नहीं रहा है, कोई बात नहीं हो रही है, जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा ही कुछ बोले तो आपको गुस्सा आए, यू ऑल्सो समवेयर, बिकॉज डीप विद इन यू आर समथिंग एल्स, और ऊपर से गलत आप सोचे जा रहे हैं कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं करना बहुत कुछ चाह रही हूँ, तो वो अग्रेशन बन जाता है और फिर वो एंगर आउटबर्स्ट होता है, राइट? तो बहुत जरूरी है खुद का सेल्फ एस्टीम हाई रखना, और खुद का सेल्फ एस्टीम हाई रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप क्या कर सकते हैं. एंगर मैनेजमेंट भी आप ले सकते हैं. एंगर मैनेजमेंट क्या कहते हैं, अगर आपसे खुद से हैंडल नहीं हो रहा, कुछ सेशंस ले सकते हैं, है ना? आप कुछ थेरेपी सेशंस ले सकते हैं जिसमें वो आपके कॉग्निटिव पैटर्न को देख के वो आपको एक्टिविटीज बता देंगे. मैम, कॉग्निटिव पैटर्न्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब ये किसने सवाल पूछा है, उनको क्या चीज सूट करेगी, है ना? सिंपली कई बार बिजी रहना. कलर थेरेपी कुछ लोगों के लिए बड़ा काम करती है, म्यूजिक थेरेपी कुछ लोगों को काम करने में बहुत हेल्प करती है, तो ये इन्हें ट्राई करनी होगी कि म्यूजिक थेरेपी इनको हेल्प कर रहा है, क्योंकि घर में यही सब चीजें अवेलेबल होती है ना?
कलर थेरेपी कई बार सिंपली मतलब इट हैज डन वंडर्स फॉर फ्यू कि आप कलर्स लेके बैठिए, और कलर्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कैनवस ही लेके बैठे, है ना। कई बार कपड़ों में, कई बार बुनाई में, आई मीन लॉट ऑफ कलर्स यू हैव। तुमने अपने घर में कुछ चीजें सजा ली, होम डेकोरेशन, तो आसपास भी घर है हमारा, थोड़ा हमने एक दीवार कुछ और कलर कर ली, कुछ और कलर कर ली, इट हैज टू बी प्लेजेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन यू हाउ सूदिंग एनवायरनमेंट कैन बी, म्यूजिक कितना आपके लिए सूदिंग हो सकता है। कई लोगों के लिए वर्कआउट बहुत सूदिंग होता है, when they start working out, है ना, they go for a walk, they go for a treadmill, या जो भी उनकी कैपेबिलिटी है ना, या कहते हैं कि घर के छोटे छोटे काम, जैसे कि क्लीनिंग करना, है ना, डेकोरेशन करना, वंडरफुल। तो इन सब चीजों में भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है व्हेन यू सी फुली। मुझे याद है कि पैंडेमिक में व्हेन मुझे बर्तन धोने से प्यार हो गया था, क्योंकि मेड्स ने आना बंद कर दिया था, और शुरू में तो लोग अरे बाप रे इतने बर्तन कैसे होएगा कैसे होएगा, पहले तो 10 दिन पानी का अटैक रहा कि क्या होएगा, सब मैं ही करूं एंड ऑल दैट, फलाना ढिमाका। उसके बाद फिर वो जो रिलैक्सेशन मिलने लगी कि वो बर्तन धोना लास्ट काम होता था, बर्तन धो के वो स्लैब पोंछ के एकदम चिकन चकाचक, तो ऐसा लगता था कि हमने मास्टरपीस क्रिएट किया है। So it was relaxing, and I realized that cleaning is actually very relaxing. I find ironing extremely relaxing. I feel as if the Crumbs creases are चले going गए. out of my life. Exactly. जैसे जब प्रेस करते हैं तो लगता है कि जो वो सिलवटें हैं वो प्लेन हो रही चली हैं, जो गई. वो शिकन पड़ी हुई है वो प्लेन हो रही है, उसमें बहुत बिल्कुल. मजा आता है। These things छोटे are छोटे relaxing. सिर्फ मैं वही कह रही रुमालों हूँ. को करो, just iron your hankies if you can't use your hand. Bubbles, वो Very जो हाँ वो bubbles आते हैं, जी bubbles जी crack bubbles को करना, पुट हाँ crack वो करना, आजकल the वो boy मार्केट who में भी works for me इजीली calls it मिलता है. पुटिया। हाँ हाँ, आजकल वो मार्केट में भी इजीली मिलता है, तो हाँ you can buy that and it actually helps. yeah I know it is a stress है ना? buster. तो आप अपने आसपास देखिए क्या चीज अच्छी लग रही है ना, कुछ चीजें गूगल कीजिए, उसमें से जो अवेलेबल है कर सकते हैं, ट्राई कीजिए अपने लिए, बिल्कुल। बच्चों के लिए, कीप ट्राइंग। और कॉग्निटिव स्किल कहाँ पे लैक कर रहा है, अगर मान लीजिए अटेंशन नहीं दे पा रहा है, मेमोरी है में ना, होता है। हाँ, तो वो हाँ, स्किल attention पे, also. हाँ, है ना, कहीं कहीं देखिए मैम, बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज नहीं जाती, अटेंशन स्पैन में नहीं जाता, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाता, वो आगे प्रोसेस नहीं होता। तो अटेंशन के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज कीजिए, है ना, जैसे कि सिंपली दाल 2-3 मिक्स कर लेना, उसको अलग 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 करना, बीड्स मिक्स कर लेना, है ना, लेटर्स को न्यूज़पेपर पे लेटर कैंसलेशन सारे ए, कट 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 कट, है ना, कि सारे ए, दीज थिंग्स स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज हैं गेम की तरह, और सबको बदलना पड़ेगा, आप रोज एक ही चीज नहीं कर सकते। ऐसी छोटी चीजें जहां पे ध्यान लगा के बैठना है। मेडिटेशन आप शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले दिन से आपको ध्यान लगाना हो, आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ट्राई कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आप गूगल करेंगे बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि हम आंखें खुली या आंखें बंद, जो भी कंडीशन सेफ है, बिल्कुल जबरदस्ती आंखें बंद नहीं करनी है। यू इमेजिन अ सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप रहना चाहते हैं, है ना, जैसे मैंने कहा कि मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, तो मैं पहाड़ों पे जाके रहना पसंद करती हूँ, पानी के पास जाके रहना पसंद करती हूँ। जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन एंड इट वर्क्स एज वंडर्स। मेडिटेटिव स्टेट में एकदम से पहले दिन जाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करता बहुत फायदा है, लेकिन वो स्टेज कवर करने के लिए आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली कम से कम महीनों तक ध्यान लगाना पड़ेगा, कि जब आप अपने इंद्रियों को, आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सके, है ना। शुरू में आप बैठेंगे ना 5 मिनट, तो अपनी आंखों की पुतलियां कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, वहीं से शुरू कीजिए। इमेजिन करने में भी, ये जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, कि अगर आप ढंग से कर लेते हैं, अगर आधे घंटे, तो 6 आवर्स की नींद जितना फायदेमंद है। और बहुत जरूरी है एमएस के पेशेंट्स के लिए स्लीप हाइजीन और हेल्दी वर्कआउट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपेबिलिटीज, है ना। नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जैसे, आप करके देखिए, गुस्सा भी शांत होता है, मूड स्विंग्स भी कम होते हैं, हार्मोनल बैलेंस भी बढ़ता है, इससे नींद भी अच्छी आती है। ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो इसके लिए, है ना, या आप गूगल करेंगे ना, आपको छोटे छोटे टिप्स मिल जाएंगे, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन डालिए वहां पर, और जी। सबसे इजी है, छोटे बच्चे भी कर लेते हैं।
Thank you so much, Dr. Shabana. I think it has been a wonderful session. We are getting a lot of feedback already on the chat, as well as individually, I'm getting some messages on my phone. But over to Millie. Mrs. Burgai, can you formally Yeah, thank? I will. Yeah. Thank And you, a little Dr. feedback Shabana. about your session, the session. Yeah. Dr. Shabana, this has been an amazingly large gathering. तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम लोग इसको समझते हैं. But I'm sure a lot of them have gone, have thought of, found very simple ways of making their life better. आपका, I love your little points कि your mindset must be improved. Just spend a little time improving your mindset. You must set achievable goals rather than look for goals which are 10 years down the line. इतना आपने इतनी प्यार से सब कुछ समझाया है. उम्मीद है कि हम अपने आप को भी खुद उसमें डालेंगे और अपनी मैं ना लाइफ पूरा में भी इस सेशन का टेक अवे सिर्फ एक लाइन में ही देना चाहूंगी कि डू नॉट कॉपी एनी ऑफ आवर एग्जांपल्स. कि कोई घूम रहा है तो उसे अच्छा लग रहा है, कोई किचन के काम कर रहा है उसे अच्छा लग रहा है, आप अपने निकालिए. एंड बिलीव कीजिए, जैसे तपस्या ने कहा, हम लोगों ने ना आधा कि घूमना ये कोई काम हुआ नहीं है, बहुत जरूरी है. खुश रहना हक है और बहुत जरूरी है. तो खुश रहने के लिए कुछ आपको ऐसी भी चीजें करनी पड़े जो कहते हैं ना सिर्फ शौक के लिए की जाती हैं, तो इट्स वर्थ इट. पीछे मत हटिए. डू नॉट बी गिल्टी ऑफ इट एट ऑल एंड स्टार्ट टुडे. Thank you very much, Dr. Saab. Thank you. It is, I mean, there are very few words to say. बहुत शुक्रिया आपका. Good evening, Millie ma'am. Good evening. Who's saying hello? Rohit. मुझे भी थैंक यू करना है कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर शबाना is saying a few things. मेरे को भी थैंक यू बोलना है यहाँ पे. मैं बहुत सारे सेशन लेती हूँ. आज सुबह भी मेरा एक बहुत बड़ा पॉक्सो का सेशन था. मतलब मैं 20 साल से हूँ तो मेरा थोड़ा अरीना बढ़ता जा रहा है. कपल काउंसलिंग से लेके वो पॉक्सो पॉश तक पहुंच गया है ना. कैंसर सपोर्ट के साथ, जैसे कैंसर पेशेंट्स के साथ साइको एजुकेशन में करती हूँ. आज MS वालों के साथ मौका मिला. आई ऑल्सो हैड लर्नड अ लॉट. यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया है. तो आई एम रियली सो हैप्पी टू join today and be attached to this whole group of yours of MSSI. Thank you so much for making a part of it. Thank you so much. Thank you so much.